کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گروز میں بختور علاقے کے لیے فضائی سروس شروع کرنے کے لیے اجمرگ ہیلی پیڈ پر ٹرائل پرواز چلائی گئی۔ علاقے کے لیے فضائی سروس شروع ہونے پر لوگوں نے تمام متعلقین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ علاقے کے لیے فضائی سروس شروع ہونے سے لوگوں کو راحت ملے گی۔ ٹرائل پروازوں کے ذریعے آج گریز اور تلیل کے نو منتخب ڈی ڈی سی ممبران بھی اجمرگ پہنچ گئے۔ ان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بختور اور کنزلون کے لوگ کافی عرصے سے فضائی سروس شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں آج ڈی سی بانڈی پورہ ہمارے ایس ڈی ایم صاحب سی او صاحب جو یہاں مراٹھا لائے کے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہماری ڈی ڈی سی جو چیئرمین ہے یہ آج یہاں پہلی بار جو ٹرائل ہوا ہے یہاں پر ہیلی پیڈ پہ آئی ہے، تو ہم شکر گزار ہیں ان سب کا کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں سروس شروع کر دی ہے۔ مسپرہ شوپیاں میں ایک پنچایتی ممبر کی جانب سے مبینہ طور پر غریب افراد سے پیسے مانگنے سے متعلق نیوز 18 اردو کی خبر کے بعد کسان مورچہ کے صدر نے علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایک عوامی میٹنگ منعقد کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ نے متعلقہ سرپنچ کے خلاف کارروائی نہیں کی تو وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ جو لوٹ ہوئی ہے پچھلے ایک سال سے، جو لوٹا ہے ہمارے غریبوں کو، مظلوموں کو، محنت کشوں کو، آئی وائی کیس پر، لیٹرن کے کیس پر، نریگا کے کیس پر، پول تار کے کیس پر، میری ڈی سی صاحب شوپیان سے پرزور گزارش ہے کہ ایسے قصورواروں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ود ان نو ٹائم، اور پوائنٹ آؤٹ کر کے چاہے وہ پنچ ہو، سرپنچ ہو، جو بھی ہو، اس کو ہر حال میں برخاست کیا جائے اپنے عہدے سے۔ کشمیر نیوز میں اب بات کرتے ہیں کرسمس کی۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ آج جموں کشمیر میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کے باوجود کرسمس کو جوش و عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ گرجا گھروں کو خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ سری نگر میں سب سے بڑی تقریب ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں منعقد ہوئی۔ یہاں خاصی تعداد میں لوگوں نے حاضری دی۔ انہوں نے امن و خوشحالی کے لیے خاص دعائیں کی۔ چرچ کے پادری نے کہا کہ اس دوران کووڈ کے حوالے سے تمام ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا۔ الگ الگ گروپس میں عبادت کا انعقاد کیا گیا۔ Christmas was something great because and something peculiar. We had a COVID SOPs to be followed, and therefore this time we ensure that we don't entire community comes together in one go. So we had divided into 3 prayer meetings. We had 3 prayer services, and the community came in 3 times. We offered prayers, particularly the peace and tranquility and brotherhood for our Kashmir entire valley and for the entire our nation. And we continue to pray that God who has born in us may continue to inspire us and be human and help each other. کہ آپ کے نیوز چینل کے میڈیم سے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے ہر ایک عوام کو اور پورے مطلب جو بھی لوگ یہ سنیں گے کہ آپ لوگوں کو بہت بہت میری کرسمس، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کے دلوں میں شانتی اور خوشیاں ہوں۔ کرسمس کے مقدس موقع پر اننت ناگ کے جان بشپ میموریل چرچ میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عیسائی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں عالم انسانیت کی خوشحالی اور قیام امن کے لیے بھی خاص دعائیں کی گئی۔ Want to wish everyone peace and joy and happiness, and in this season and also throughout the coming year. And also Jesus came to heal people, and we pray for healing over our land, physically and also emotionally and politically, in every way, that we might be a society that is healthy and vibrant and successful in this day and age. ادا کرنا چاہتا ہے کیونکہ کشمیری لوگ آپ لوگ نہیں آنے تو ہم کو کرسمس نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم سب کو چھوڑ کے، ہمارا بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کے ہم اتنا دور آ گیا، 3 دن سفر کر کے۔ کمپلیٹلی دے سپورٹ اس، دے جوائن اس، اینڈ اتنا ہم کو
मुबारक बोलता है। मैं बोला ना अभी आपको, वो लोग मुबारक नहीं बोलने तो हमको क्रिसमस नहीं लगता। जम्मू में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जम्मू के गांधीनगर सेंट गैरिसन चर्च में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ खासी तादाद में अकीदतमंदों ने खुसूसी इबादत में शिरकत की। इस मौके पर अमन, खुशहाली, भाईचारे और कोरोना से निजात के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस यानी बड़ा दिन, इसका मतलब इस दिन हम प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस को मनाते हैं, जो हमारे बीच में ईश्वर होते हुए भी मानव बनकर हमारे बीच में आ गए, ताकि हमारी वह रक्षा करे, हमारी वह मुक्ति करे हर एक पाप से, हर एक बुराई से। इसलिए इस दिन हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ये दिन मनाते हुए, और सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि जो शांति का, प्यार का, भाईचारे का संदेश प्रभु का बेटा ईसा मसीह लेकर आए थे वह हम सबको मिले। जिला पुंछ में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कोरोना की वजह से क्रिसमस पर हर साल निकलने वाला जुलूस इस बरस नहीं निकाला गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब मुल्ला कमसर में मौजूद STI चर्च में मुनक्किद हुई। खासी तादाद में अकीदतमंदों ने खुसूसी इबादत में शिरकत की। इनमें बच्चे भी शामिल रहे। जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है तो खत्म हो जाए, हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में अमन चाह रहे और आपसी भाईचारा रहे। जैसे हम पुंछ का भाईचारा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ईद हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, हम सब मिलके बनाते हैं। आज इसी तरीके से ये त्यौहार भी जो है सब मिलके बनाते हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। कंजर के लिए PDP और चंद आज़ाद उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि ITI पटन में वोटिंग की गिनती के दौरान धांधलियां की गई। PDP उम्मीदवार ने कहा कि हर राउंड में वो आगे थे, मगर अचानक उन्हें पीछे बताया गया। इन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि इस मामले की तहकीकात की जाए। रिटायरिंग अफसर को ये बताने चला गया कि क्या बात है कि आप काउंटिंग अच्छी तरह से क्यों नहीं करते हो, और ये भी हमें खदशा हुआ वहाँ। और मुझे अपने इन एजेंटों ने बताया कि कुछ ऐसे वोट लाए गए जो बक्सों में नहीं थे, इसी तरह थैलों में लाए गए और टेबलों पर बिछाए गए और उनको गिन लिया गया। हमारे साथ पूरी तरीके से धांधली की गई है। जो हमको वोट आ गए हैं वो उसमें हमारा जो निशान था आइसक्रीम, वहां से उन्होंने वो चेंज किया, वहां से एक मतलब एक वो कवली बना दिया। और वो लोग, वो हमारे जो वर्कर थे जिनको मैंने पोस्ट भी किया था आइसक्रीम, और जिनको मैंने बैनर भी दिया था कि मेरे निशान है आइसक्रीम, लेकिन वो निशान मुझे चेंज कर दिया गया है। जो मेरे वोट है वो बैठ। CPIM के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद पंडित ने चंद सियासी लीडरान को हिरासत में लेने की मजम्मत की है। उन्होंने मस्तपुरा चेक किलर शोपियां में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP जम्मू कश्मीर में गैर जमहूरी काम अंजाम दे रही है। हद से ज्यादा बहुत तादाद में यहाँ हमारे आज़ाद उम्मीदवार उभर कर आए, जीत कर आए, ये खुशी की बात है। लेकिन एक चीज़ है, मैं नाम लिए बगैर कह दूंगा कि नाम लेना चाहता नहीं हूँ, लेकिन हमारे आज़ाद जो मेंबर्स हैं उनको वर्गलाया जा रहा है, उनको दिस वे दैट वे, मुझे पता नहीं क्या वो पैसा है या कुछ क्या है, लेकिन उनको वर्गलाया जाता है। अवाम उससे हमारे अवाम की परेशानी और बढ़ती जा रही है। मैं उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, गुपकार एलायंस की भी रिक्वेस्ट रही है कि आप लोग, अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आप लोग अवाम के उन मसाइलों का अजाला करने के लिए एकजुट हो जाइए। DDC और पंचायत के ज़मीनी चुनाव में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद बांडीपुरा में PDP फिर एक बार मुतहरिक नजर आई। नौमंतखब DDC मेंबरान कौसर शफीक, अब्दुल गनी और दूसरे पंचायती मेंबरान को तहनीत पेश की गई। इस सिलसिले में एक कन्वेंशन के दौरान पार्टी की शानदार कामयाबी पर वर्करों ने पार्टी क़यादत को मुबारकबाद दी। साबिक रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने वर्करों पर जोर दिया कि वो सबको साथ लेकर चलें। बुजुर्गों से मिलो, माओ बहनों की इज्जत करो, बच्चों को सिखाओ तारीख क्या है, तुम्हारा तमद्दुन क्या है, तहजीब तुम्हारी क्या है, इनको उससे रोशनास करो, ये ना भूल जाए इनकी क्या। बानिहाल की 5 DDC नशिस्तों से आज़ाद उम्मीदवार राबिया हमीद और फयाज अहमद नायक, कांग्रेस उम्मीदवार इम्तियाज अहमद खांडे और बशीर अहमद नायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस की
गुलशना बानो ने जीत दर्ज की है। कामयाब उम्मीदवार और उनके हामियों की जानिब से जीत का जश्न का मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में बानिहाल और रामसू में जश्न मनाया गया। इस मौके पर खासी तादाद में लोग मौजूद रहे। सहाफ़ी और कलमकार मकबूल विरे की पहली बरसी पर पुलवामा में ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया गया। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से सदर शाह इरशादुल हक कादरी की सदारत में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। जिला पुलवामा के सहाफ़ियों और कलमकारों के अलावा शोरा ने शिरकत की। मरहूम की सहाफ़त की तई खिदमात को याद किया गया। एक दुआया मजलिस का भी एहतमाम किया गया। पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मकबूल विरे के नाम से अवार्ड भी मंसूब किया गया। अगले साल से सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सहाफ़ी को ये अवार्ड दिया जाएगा। मकबूल साहब की सौती पेशकश हो या कलमी कारनामा, उसका कोई सानी कम से कम जनूबी कश्मीर की सरजमीन में आज तक पैदा नहीं हुआ है। हम उन्हें आज उनकी पहली बरसी पे दिल की अमी गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं। मकबूल विरे साहब जो हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं थे। मकबूल साहब बैक वक्त एक कामयाब सहाफ़ी थे, एक कामयाब शायर थे, एक कामयाब अफसान निगार थे और हमें इस सरज़मीन पर फ़ख्र है, अपने जनूबी कश्मीर की सरज़मीन पर फ़ख्र है कि ऐसे सपूत यहाँ पे पैदा हुए हैं। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज पुलवामा का तफसीली दौरा किया। उन्होंने जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में निजी सनती इदारों में चल रहे कामकाज का जायजा लिया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा के यूनिट मालिकान ने LG के मुशीर के सामने अपने मुतालबात रखे। यूनिट मालिकान ने कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में इंतजामिया ने बिजली की कटौती का मसला हल कर दिया है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट को दरपेश मजीद मसाइल को हल करने के लिए बसीर खान को यूनिट मालिकान की एसोसिएशन की जानिब से एक याददाश्त पेश की गई। पावर का मसला जो हुआ है उसके लिए मैं इस गवर्नर इंतजामिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पावर का जो पार साल की प्रॉब्लम थी, कर्टलमेंट हुई थी, आज इस वक्त हमें कर्टलमेंट अभी तक नहीं हुई है। न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ फेज सेकंड इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज सेकंड शुरू होने वाला है, उसमें जो काम है अभी वो उस रफ्तार से नहीं हो रही है क्योंकि हम जहाँ तक इस एस्टेट का तारीख है यहाँ पर लैंड इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट वो फेज सेकंड हम उठाएंगे तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो इस वक्त बहुत परेशान है लैंड के लिए, ताकि उनको वो लैंड मिल जाएगी इस वक्त। और दूसरा मसला जो हमारा है जिसके लिए हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल में ये बड़ा इशू है जो इनको सीरियस लेना है, जो हमारा ये मतलब एस्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट है ये विदाउट फेंसिंग एंड वॉल है। जम्मू कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पुंछ में भी बीजेपी यूनिट की जानिब से अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। अटल बिहारी वाजपेयी की बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों पर रोशनी डाली गई। भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर जो है अटल बिहारी वाजपेयी इसके फाउंडर भी थे और उन्होंने जो काम किए, करगिल वार जो बड़ी संजीदगी से उन्होंने लड़ी, अपनी हिंदुस्तान की ज़मीन जो है 1 इंच भी पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान का बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी का दिन जो है बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मना रहा है और आज का दिन जो गुड गवर्नेंस के हिसाब से भी मनाया जाता है। कठुआ में भी अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीजेपी यूनिट कंडी मंडल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में पार्टी कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस के रूप में आज सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे नेता के रूप में, अच्छे प्रवक्ता के रूप में उन्होंने लोगों की सेवा की और उनकी जो सेवा है, उनका जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको उसके उत्थान के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए, आज उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो जिला इंतजामिया कठुआ की जानिब से बरनोटी ब्लॉक में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाकर किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए फराहम किए। उन्होंने पीएम के इस इक़दाम को किसानों के हक में एक अहम कदम करार दिया।
उनका कहना है कि चंद शरपसंद अनासर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। असली सैल्फ रूल मोदी जी ने असीं दिता। असीं नारे लाते होंगे सैल्फ रूल दे, ये सैल्फ रूल है जिहड़ा धरती दा जम्मिया और हुण चुके साडा ऐसा तंत्र बनिया। पहले हुई सीधा जमीन की आवाज़ MP तक पुजदे चिर लगता हुआ, हुण साडी कड़ी बनी है। तुसां छड़ा पंच सरपंच के कन्ने फूक मारनी, उन्हें BDC के कन्ने मारनी, उन्हें कौंसल दे मारनी, ये अगे अगे काम चलता जाना। तो मिगी विश्वास है कि आने वाला समय हुण साडा एक अच्छा समय आया है। PM किसान सम्मान निधि योजना के हवाले से कॉन्फ्रेंस हॉल करगिल में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एक मेगा ट्रेनिंग व जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से इसका इनेकाद किया गया। CAO करगिल मोहम्मद अली खान मेहमान खुसूसी थे। स्टेट नोडल अफसर मोहम्मद हुसैन खान मेहमान ज़ी-वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। करगिल A और करगिल B जोन के किसानों ने इसमें शिरकत की। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।